کہا جاتا ہے کہ ادھم کے نام سے ایک درویش قلندر تھے جن کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ بلخ شہر پہنچے اور شہر کے باہر ایک کٹیا بنا کر اس میں رہنے لگے۔ ایک دن کسی ضرورت کے تحت وہ شہر گئے۔ اتفاق سے اسی وقت بلخ کے بادشاہ کی بیٹی باغ کی سیر سے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں شاندار انتظامات کیے گئے تھے۔ راستے کے دونوں طرف عورتیں اور بچے جمع تھے۔ جو لوگ شہزادی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے ان کے ساتھ ادھم فقیر بھی ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب شہزادی کی پالکی ان کے برابر سے گزری تو تیز ہوا کی وجہ سے اچانک پالکی کا پردہ اٹھ گیا۔ ادھر فقیر کی نظر جب شہزادی کے رخ زیبا پر پڑی تو وہ دل و جان سے اس پر عاشق ہو گئے۔ خوش ہو کر وہ شہزادی کی سواری کے پیچھے بادشاہی محل تک جا پہنچے اور دیر تک باہر کھڑے رہے۔ جب سواری محل کے اندر چلی گئی تو انہوں نے ایک خادم سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے اور اس پالکی میں کون سوار تھی؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شاہی محل ہے اور اس پالکی میں شہزادی صاحبہ سوار تھی جو باغ کی سیر کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ یہ سن کر ادھم فقیر سیدھے بادشاہ کے دربار میں پہنچے جہاں بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ فقیر دربار میں بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا اس فقیر سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وزیر فقیر کے پاس گیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ ادھم فقیر نے بغیر کسی خوف اور جھجک کے سارا ماجرا بیان کر دیا اور کہا میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی میری زوجیت میں دے دے۔ فقیر کی بات سن کر وزیر کو سخت غصہ آ گیا لیکن شاہی آداب کے باعث خاموش رہا۔ وہ بادشاہ کے سامنے واپس آ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ تب بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا بلا جھجک حقیقت حال سے مجھے آگاہ کرو۔ وزیر نے آداب بجا لاتے ہوئے عرض کی جہاں پناہ جو کچھ اس فقیر نے کہا ہے میری غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے اپنی زبان پر لاؤں۔ جب بادشاہ نے بار بار اصرار کیا تو وزیر نے فقیر کی کہی ہوئی بات منوان بادشاہ کے سامنے بیان کر دی۔ بادشاہ یہ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہا اور سر جھکا لیا۔ پھر اس نے ادھم فقیر کو اپنے سامنے بلایا اور پاس بٹھا لیا۔ بادشاہ نے اس کا حسب و نسب دریافت کیا۔ جب اسے فقیر کی اعلیٰ نسبی کا علم ہوا تو اس نے کہا اے درویش جمع خاطر رکھو، تمہاری اعلیٰ نسبی کی وجہ سے مجھے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تھوڑا صبر کرو۔ میں پہلے شہزادی کی والدہ اور خود شہزادی سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دوں گا۔ ادھر فقیر بادشاہ کے اس جواب سے خوش ہو کر اپنی جھوپڑی میں واپس آ گئے۔ ادھر فقیر نے 3-4 روز انتظار کیا اور پھر بادشاہ بلخ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سلام کرنے کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ بلخ کا بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی ادھم فقیر سے کرنے پر راضی تھا، لیکن اس کا وزیر کسی صورت اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بادشاہ کی بیٹی جو کہ ایک شہزادی ہے ایک فقیر سے بیاہی جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وزیر اس بات پر متفق نہیں ہوا تو بادشاہ نے کہا میں نے اس فقیر سے وعدہ کر لیا ہے، اب اس کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں اور کیسے انکار کروں؟ مجھے اس صورتحال پر بہت ندامت محسوس ہوتی ہے۔ وزیر نے جواب دیا جہاں پناہ یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ خود کچھ نہ کہیں، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ وزیر نے کہا میں اس درویش سے کسی طرح نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد وزیر نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ شاہی خزانے سے سب سے قیمتی موتی جو بے مثال اور نایاب تھا نکالا اور ادھم فقیر کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر وزیر نے کہا اگر تمہیں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو اس کی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس طرح کا ایک اور موتی لا کر دو تاکہ یہ جوڑا بن سکے اور شہزادی کے گوشوارے تیار کیے جا سکے۔ ادھر فقیر نے وزیر کی یہ بات سنی اور کہا اچھا یہی چاہیے؟ وزیر نے کہا ہاں بالکل یہی، اس طرح کا ایک اور موتی چاہیے۔ ادھر فقیر نے وزیر سے پکا وعدہ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ فقیر کو معلوم تھا کہ اس طرح کے نایاب موتی دریا سے نکالے جاتے ہیں، لہٰذا وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر ادھم فقیر دریا کا پانی باہر نکالنے لگے۔ کھانا پینا سونا سب کچھ بھول گئے اور صبح شام اسی کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام اس جگہ تشریف لائے
और दरवेश से पूछा, ऐ दरवेश, अल्लाह ताला ने तेरी मेहनत को कबूल फरमा लिया, अब हाथ रोक ले। मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है ताकि तेरी मुराद पूरी करूं। बता तू क्या चाहता है। उधर फकीर ये सुनकर बहुत खुश हुए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया और अर्ज की, ऐ नबी खुदा, आपने मुझे मेहनत से क्यों रोका? चंद लम्हे भी अगर जाया हो गए तो मुझे अपनी नाकामी का खदशा है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ दरवेश, अगर तुम 1000 साल तक भी दरिया से पानी निकालते रहो तो ये दरिया खुश्क नहीं होगा। बेहतर यह है कि तुम अपनी ख्वाहिश बयान करो ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इसे आसान फरमाए। अदम फकीर ने अपनी पूरी दास्तान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के सामने बयान कर दी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ सुकून से बैठ जाओ, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने इतने ज्यादा मोती ढेर कर दूंगा कि तुम उन्हें ले जाने के काबिल भी नहीं रहोगे। अदम फकीर खामोश होकर बैठ गए। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम गायब हो गए। उसी वक्त दरिया में तमोश पैदा हुआ, लहरें बुलंद होने लगी और दरिया उभरने लगा। बेशुमार मोती और सीपियां दरिया के किनारे जमा हो गई। फिर गैब से एक आवाज आई, ऐ दरवेश, जिस कदर मोती लेना चाहते हो यहाँ से ले लो। अदम फकीर ने सजदा शुक्र अदा किया और तमाम सीपियों को तोड़कर उनसे मोती निकालने लगे। उन्होंने अंडे के बराबर 12 मोती निकाले जो इतने नायाब और कीमती थे कि किसी भी बादशाह के खजाने में भी मौजूद नहीं हो सकते थे। अदम फकीर ने ये तमाम मोती अपने कुल्ले में छुपाए और बलख शहर की तरफ रवाना हो गए। रात किसी तरह अपनी कुटिया में गुजार ली। सुबह होते ही नमाज और वजीफे से फारिग होकर अदम फकीर बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन्होंने वो 12 मोती जो अपने कुल्ले में छुपाए थे बादशाह के सामने रख दिए और कहा, आपने मुझसे सिर्फ एक मोती की फरमाइश की थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतने ज्यादा मोती अता किए कि अगर आप उन्हें देखते तो आपकी आंखें खीरा हो जाती। फिलहाल ये 12 दाने मोती मैंने चुनकर आपकी खिदमत में पेश किए हैं, आप इन्हें लें और अपना वादा पूरा करें। बादशाह उन मोतियों को देखकर हैरान रह गया। वह मोतियों को लेकर वजीर से मशवरा करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वजीर ने फिर वही बात दोहराई कि बादशाह मुअज्जम की लड़की एक फकीर के साथ ब्याही जाए, ये मुमकिन नहीं, इससे बादशाह की बड़ी जिल्लत होगी। बादशाह ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। ये दरवेश बहुत पहुंचा हुआ है और बाइज्जत मालूम होता है। अगर इसने मेरे हक में बद्दुआ कर दी तो फिर सिवाय पशेमानी के कुछ भी हासिल नहीं होगा। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, बस थोड़ी देर के लिए दरबार से उठकर आप महल तशरीफ ले जाएं, मैं उस फकीर को देख लेता हूँ। मजबूरन बादशाह दरबार से उठा और महल के अंदर चला गया। बादशाह के महल में जाने के बाद वजीर ने दरवेश को बुलाया और कहा, ऐ नामुराद, तुम किस दीवानगी में मुब्तला हो? बादशाह की बेटी शहजादी तेरे जैसे मुफलिस की ज़ौजियत में दी जाए, तेरी अर्ज कभी पूरी नहीं होगी। बेहतर यह है कि तू अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जा, वरना जो कुछ तेरे नसीब में लिखा है वो सब पूरा हो जाएगा। दरवेश कलंदर ने जवाब दिया, ऐ जालिम, खुदा से डर, मैं तो अपनी जान से हाथ धो चुका हूँ, लेकिन तू अपनी खैर मना। खुदा को हाजिर नाजिर तुम उसको दरमियान में डालकर फिर वादा खिलाफी करते हो। तुमने खुद मुझसे वादा किया था कि ये मोती ले आओ और बादशाह की बेटी की शादी मुझसे कर दी जाएगी, लेकिन अब तुम उसी वादे से मुकर गए हो। खुदा के कहर से डरो। वजीर को दरवेश की बात पर बेहद गुस्सा आया। उसने जवाबदारों को हुक्म दिया, इसे अच्छी तरह सदोकोप करके शहर से बाहर निकाल दो और कभी महल के अंदर इसे दाखिल न होने देना। जवाबदारों ने फकीर अदम को पकड़ा, सदोकोप किया और महल से बाहर निकाल दिया। अदम फकीर हैरान परेशान ज़ारो कतार रोते हुए अपनी झोपड़ी में लौट गए और वहां मगमूम होकर बैठ गए। जब शहजादी को इस बात का इल्म हुआ तो वो सकते में आ गई। अभी इस वाकये को थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादशाह की बेटी के पेट में शदीद तकलीफ हुई। लाख इलाज और तदबीरें की गई, लेकिन किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हुआ और देखते ही देखते शहजादी मर गई। कोहराम मच गया। आखिर बादशाह ने वजीर को बुलाकर उसे खूब बुरा भला कहा। वजीर सर झुकाए नादिम खड़ा रहा, लेकिन अब पशेमानी से क्या हासिल हो सकता था। उसके बाद शहजादी की तजहीज और तकफीन बड़ी आबोताब से की गई और उसकी कब्र के चारों तरफ खेमे नस्ब कर दिए गए। यहाँ ऊद और अंबर जलाने का इंतजाम था। बेशुमार कुरान खानी के लिए और काफी पहरेदार पासबानी और देखभाल के लिए मुकर्रर किए गए थे। ये तमाम पासबान शहजादी की कब्र से हटकर पहरा देने लगे।
उधर कुटिया के अंदर दरवेश कलंदर के दिल में इश्क की आग लगी हुई थी और उन्हें किसी तरह भी सुकून का एहसास नहीं हो रहा था। जब आधी रात गुजर गई तो वो बेलचा लेकर मकबरे की तरफ रवाना हुए और पहरेदारों से आंख बचाते हुए खेमों को अबूर करते हुए अपनी महबूबा की कब्र तक पहुंच गए। कब्र को खोदकर उसकी लाश निकाली और कब्र को उसी तरह ठीक करने के बाद शहजादी की लाश को अपने कांधे पर डालकर अपनी कुटिया की तरफ लौट आए। झोपड़ी में पहुंचकर शहजादी के जसद को दीवार के साथ लगाकर बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठकर शहजादी का नजारा करने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शख्स वहां से गुजरा। वो शख्स एक माहिर हकीम था जो बलख शहर से आया था, लेकिन शहर का दरवाजा बंद होने की वजह से वो इधर उधर भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि शहर का दरवाजा बंद है तो अब कहाँ जाए, और रात गुजारने के लिए वो किसी पनाहगाह की तलाश में था। अचानक एक झोपड़ी से रोशनी आती देखी तो उसे ख्याल आया कि ये यकीनी तौर पर किसी दरवेश का आस्ताना होगा। वो उसी सिमत रवाना हुआ। झोपड़ी से बाहर पैरों की आवाज सुनकर अधम फकीर को यह ख्याल आया कि शायद बादशाह के जासूस हों जो हकीकत हाल का पता चलाने के लिए मुतय्यन किए गए हों। ये ख्याल आते ही वो अपनी झोपड़ी के तहखाने में जाकर छुप गया। फिर जब दरवाजा खुला एक और शख्स अंदर आया। वहाँ कोई शख्स नहीं था, न कोई आवाज थी, न ही कोई पता चल रहा था। इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक हसीन और एक परी जमाल लड़की का जसद दीवार से लगा हुआ पाया। वो हैरान रह गया कि इतनी हसीन लड़की इस झोपड़ी में कैसे आ गई। कुछ देर तक वो उसे देखता रहा। फिर जब उसने उसका तिबी मुआयना किया और उसकी नफ्स को चेक किया तो उसे ये एहसास हुआ कि इस लड़की को सप्ता का मर्ज लाहक है। अभी वो लड़की जिंदा थी। हकीम ने फौरन नशा देकर शहजादी का थोड़ा सा खून निकाल लिया और लम्हों में ही शहजादी की आंखें खुल गई और वो उस मोजी मर्ज से निजात पा गई। होश में आने के बाद जब शहजादी ने अपने सामने एक अजनबी को देखा तो बहुत खौफजदा हो गई और हकीम से पूछा, बाबा सच सच बताओ मैं यहाँ किस तरह आई हूँ? हकीम ने जवाब दिया, बेटी मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत दूर से आया हूँ। शहर में दाखिल होना चाहता था मगर शहर का दरवाजा बंद हो चुका था। रात काफी गुजर चुकी थी और मैं किसी ठिकाने की तलाश में था जहाँ रात गुजार सकूं। मुझे इस झोपड़ी में रोशनी दूर से दिखाई दी और मैं इधर आ गया। जब मैं यहाँ पर आया तो कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया और फिर तुम्हारे बेहरकत जिस्म पर मेरी नजर पड़ गई। तुम्हारे मर्ज का पता चल गया था, इसलिए मैंने फौरन इलाज शुरू किया और अल्लाह ने तुम्हें शिफा बख्शी। मेरी दास्तान तो बस यहीं तक है। अब तुम अपना हाल बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और तुम्हारे साथ क्या वाकयात पेश आए। उसी दौरान दरवेश कलंदर ने एक तरफ से सर निकाल कर सुना कि कोई आवाज आ रही है और कोई बातें कर रहा है। जब उसने ध्यान से देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग जो बड़ी ही पाकीज़ा सूरत के मालिक थे शहजादी से बातें कर रहे थे। दरवेश फौरन बाहर निकल आए और हकीम को सलाम करके उनके सामने बैठ गए। हकीम ने फौरन समझ लिया कि यही वो शख्स है जिसका वो इंतजार कर रहे थे, यानी शहजादी का साहिब खाना। हकीम ने उनसे हकीकत हाल दरियाफ्त की और दरवेश कलंदर ने शुरू से आखिर तक सारा माजरा सुना दिया। हकीम कुछ देर खामोश बैठे गौर व फिक्र करते रहे और फिर उन्हें तसल्ली दी कि अल्लाह बेहतर करेगा। उसके बाद दोनों की रजामंदी से यानी दरवेश और शहजादी के दरमियान एक दूसरे को रिश्ते में मुंसलिक कर दिया गया। जब सुबह हुई तो हकीम साहब ने दोनों से इजाजत लेकर शहर वापस जाने का फैसला किया। अधम फकीर और शहजादी जो कि अब मियां बीवी बन चुके थे उसी झोपड़ी में रहने लगे। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक साहिब सीरत और खूबसूरत बेटे से नवाजा। लड़का माँ की शक्ल पर था और हद दर्जा ज़हीनो फतीन था। दोनों ने उस लड़के का नाम इब्राहिम रखा और दिलो जान से उसकी परवरिश करने लगे। जब इब्राहिम कुछ बड़ा हुआ तो उसे तालीम हासिल करने के लिए मकतबे में दाखिल कर दिया गया। एक दिन सैर करते हुए बलख के बादशाह का उस मकतबे के करीब से गुजर हुआ जहां इब्राहिम बिन अधम तालीम हासिल कर रहा था। बादशाह बलख का ये तरीका था कि जब वो किसी मकतबे के करीब से गुजरता तो थोड़ी देर के लिए वहां का विजिट जरूर करता। वो मकतबे में दाखिल होकर उसका मुआयना करता, असातिज़ा को इनाम देता और बच्चों को अपने सामने मकतबे से छुट्टी देता। इससे बच्चे बड़े खुश हो जाते थे। चुनाचे इस मर्तबा भी जब बादशाह ने बच्चों को छुट्टी दिलवाने का अमल शुरू किया, हजरत इब्राहिम बिन अधम की बारी आई और जब वो मकतबे से बाहर निकलने लगे
तो बादशाह उस बच्चे का हुस्न और जमाल देखकर उस पर फिदा हो गया। वो उसकी शक्ल में अपनी बेटी का अक्स देख रहा था। बादशाह ने फौरन बच्चे को अपने करीब बुलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बच्चे की पेशानी चूमकर वो उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल ले जाने लगा। जब बादशाह ने मकतबे के मौल्लिम से पूछा, ये लड़का किसका है? मौल्लिम ने जवाब दिया, ये एक साहिब अजमत कलंदर का बेटा है जो हर सुबह इसे मकतब लाते हैं और छुट्टी के वक्त वापस ले जाते हैं। बादशाह ने कहा, मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाता हूँ। जब इस लड़के के वालिद आए तो उन्हें इत्मीनान दिलाना और मेरे पास महल भेज देना। मौल्लिम ने कहा, जहां पना बहुत अच्छा। जब बादशाह ने उस लड़के को अपने साथ लेकर महल में पेश किया और अपनी मलका के रूबरू पेश करते हुए कहा, हमारी मरहुमा लड़की की शक्ल सूरत इस लड़के से कितनी मिलती है। मलका ने भी उस बच्चे को गोद में उठाकर प्यार किया और उसे अपने दिल से लगाया। वो उसके साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आई। उधर दरवेश कलंदर जब लड़के की छुट्टी के वक्त मदरसे पहुंचे तो मौल्लिम ने दूर से ही उन्हें देखकर दौड़ कर आकर सारा हाल सुनाया। अधम फकीर ये सारा वाकया सुनकर बेहद मुस्तरिब नहीं हुए, बल्कि फौरन बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए, जहां बादशाह उनका इंतजार कर रहा था। बादशाह ने अधम फकीर को बहुत इज्जत और एहतराम से बिठाया। हालांकि उसने कई दिनों से फकीर को नहीं देखा था, मगर फौरन पहचान लिया कि ये वही फकीर है जिसका जिक्र पहले सुना था। अधम फकीर ने बादशाह से कहा, मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपने बेटे को ले जाना है, क्योंकि इसकी माँ इसे बेहद मोहब्बत करती है और अगर वो फौरन अपने बच्चे से न मिल पाई तो वो अपनी जान दे देगी। बादशाह ने कहा, इस लड़की की माँ का नाम क्या है और वो किस खानदान से ताल्लुक रखती है? खुदा के वास्ते मुझे सच सच बताइए। हजरत अधम फकीर ने सच्चाई के साथ तमाम बातें और वाकयात बादशाह के सामने बयान कर दी। जब बादशाह ने अपनी बेटी की जिंदगी का सच्चा वाकया सुना तो उसने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की रजा पर राजी हो गया। बादशाह खुश खुश अपनी मलका के साथ हरम सरा वापस आया और ये खुशखबरी सुनाते हुए अपनी बेटी की हालत और उसकी जिंदगी के मुतालिक बताया। बादशाह ने फौरन अपनी मलका को साथ लेकर एक सवारी पर सवार होकर हजरत अधम, इब्राहिम बिन अधम और मलका को भी अपने साथ लिया और खुशियों के साथ उस झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। जब शहजादी ने झोंपड़ी से अपने माँ बाप को आते हुए देखा तो वो खुशी से दौड़कर उनके कदमों में गिर गई और इज्जत से सलाम किया। बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को गले लगाया और सबने मिलकर खुशी के आंसू बहाए। फिर शहजादी को लेकर खुशी खुशी अपने महल वापस पहुंच गए। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद को बड़ी जागीर और इलाके का तोहफा दिया ताकि वो लोग आरामदेह और शाहाना जिंदगी गुजार सके, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने ये तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए सादगी और मोहब्बत भरी जिंदगी ही सबसे कीमती थी। शहजादी और उसके शौहर ने बादशाही जिंदगी को तर्क करके सादगी और फुकर की जिंदगी को तरजीह दी। ये फैसला बादशाह और मलिका के लिए हैरत का बाइस बना, मगर वो दोनों उनकी पसंद का एहतराम करते हुए खुश थे। बादशाह ने अपनी बेटी और दामाद की रजामंदी से सुल्तान इब्राहिम बिन अधम को अपना वली अहद मुकर्रर किया, क्योंकि वो अपनी किसी भी बीवी से औलाद नरीना नहीं रखते थे। कुछ दिनों के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और सुल्तान इब्राहिम बिन अधम अपने नाना की जगह तख्त नशीन हो गए। वो बहुत अक्लमंदी और इंसाफ के साथ हुकूमत चलाने लगे, मगर उनका दिल बादशाहत की तरफ माइल न था। कहा जाता है कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है, और सुल्तान इब्राहिम बिन अधम का दिल भी फुक्र और दरवेशी की तरफ ज्यादा माइल था, जहां उनकी रूह को सुकून मिलता था। सुल्तान इब्राहिम बिन अधम की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया जब वो एक रात तख्त पर सो रहे थे और अचानक मकान की छत हिलने लगी। सुल्तान जाग गए और फौरन आवाज दी, कौन ऊपर चल रहा है? जवाब आया, ऊंट गुम हो गया है, तलाश कर रहा हूँ। सुल्तान ने गुस्से से कहा, ए अहमक, छत पर ऊंट किस तरह चल सकता है? लेकिन जवाब में कहा गया, ए गाफिल इंसान, खुदा कादिर मतलक है, अगर वो चाहे तो ऊंट को छत पर भी पहुंचा सकता है, लेकिन तुम जो ख्वाब के कपड़े पहनकर गद्दे पर सो रहे हो और खुदा को तलाश करते हो, ये कितनी बड़ी नादानी है। ये बात सुल्तान के दिल में गहराई तक उतर गई। उसी लम्हे सुल्तान ने अपने दिल में ये फैसला किया कि वो तमाम शाहाना लज्जतों और ऐशो आराम को तर्क करके सहरा की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस फैसले के साथ उन्होंने दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की
क्योंकि उनका दिल अब खुदा की तलाश में मुखलिस हो चुका था। सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम ने सल्तनत की तमाम शान और शौकत को छोड़कर दरवेशी की जिंदगी इख्तियार की। रास्ते में एक चरवाहा मिला जिसे उन्होंने अपना कीमती लिबास दे दिया और खुद उन्होंने उसका सादा टाट का कपड़ा पहन लिया। चलते चलते वो मक्के पहुंचे और फिर नीशापुर में एक गार में पनाह गुज़ीन हो गए। जब सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम सल्तनत को छोड़कर बलख से निकले तो कुछ वक्त के लिए दरिया दजला के किनारे मुकीम हुए। उस दौरान आपके उमरा और वज़रा आपकी तलाश में निकले और आपके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। उस वक्त सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम अपने खरके को सी रहे थे जो कि बहुत बूढ़ा और सादा था। जब आपने लोगों का मजमा देखा तो आपने सवाल किया, तुम कौन लोग हो और कहां से आए हो? ये सवाल उनकी सादगी और दरवेशी की गवाही देता है कि अब वो दुनियावी शान और शौकत से दूर हो चुके थे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने बलख वापस जाने की दरखास्त करने वालों से फरमाया कि वो कभी वापस नहीं जाएंगे। लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो आपने अपने हाथ से सिए हुए खरके की सुई दरिया दजला में फेंक दी और कहा, अगर तुम मेरी सुई को दरिया से निकाल दो तो मैं तुम्हारी बात को मानकर वापस बलख चला जाऊंगा। उन लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन सुई को नहीं निकाल सके। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई तुम में से जिसके पास है वो मुझे ला कर दे दे। फौरन ही 1,00,000 मछलियां सोने की सुइयों के साथ दरिया के ऊपर आ गईं और उनमें से एक मछली के मुंह में आपकी सुई थी। हजरत इब्राहिम ने वो सुई लेकर आने वाले उमरा और वज़रा को रुखसत करते हुए कहा, मुझे बलख की बादशाहत की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम लोग वापस जाओ। इस वाक़ये से हजरत इब्राहिम बिन अदहम की दरवेशी की हकीकत और दुनियावी लज्जतों से बेरग़बत होने की गमाज़ी होती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में एक वाक़या है कि एक मर्तबा एक शख्स ने उनसे पूछा, आप किसके बंदे हैं? ये सवाल सुनते ही हजरत इब्राहिम बिन अदहम खौफ से कांपने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। जब कुछ देर के बाद होश आया तो आपने उस शख्स से कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उस शख्स ने कहा, जब मैंने आपसे सवाल किया था तो आपने फौरन ये जवाब क्यों नहीं दिया? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जवाब दिया, मुझे खौफ था कि अगर मैंने अपने आप को अल्लाह का बंदा कहा और अल्लाह ने हक़ बंदगी तलब किया तो मैं क्या करूंगा, और उससे इनकार की भी मजाल न थी। एक और वाक़ये में हजरत इब्राहिम बिन अदहम दरवेशों की जमात के साथ एक जगह से गुजरे जहां बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी। दरवेशों ने कहा, आज रात हम इस जगह लकड़ी जलाकर गुजार लेते हैं। हजरत इब्राहिम ने उनकी बात मान ली और वहां रात गुजारने का फैसला किया। ये वाकया हजरत की सादगी और दुनियावी लज्जतों से बेनियाज जिंदगी की अक्कासी करता है, जो हमेशा अल्लाह की रजा और इत्मीनान की तरफ माइल रहते थे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबादत और बेनफसी का एक और वाकया है कि एक रात हजरत बैतुल मुक़द्दस में इबादत करने पहुंचे। चूँकि वहां रात के वक्त किसी को ठहरने की इजाजत नहीं थी, आपने अपने आप को एक बोरे में छुपा लिया ताकि किसी को पता न चले कि आप वहां मौजूद हैं। रात गुजारने के बाद जब खुद्दाम बाहर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया, एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग शख्स ने 40 कंबल पोश अफराद के साथ मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकत नमाज अदा की। फिर वो बुजुर्ग अपने मुरीदों के साथ बैठकर बातें करने लगे। एक शख्स ने कहा, आज रात यहाँ कोई बाहर का बंदा मौजूद है। उस पर वो बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, इब्राहिम बिन अदहम है, 40 शबा रोज से उसे इबादत में मजा नहीं मिल रहा। ये सुनकर हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह बोरे से बाहर निकल आए और उन बुजुर्ग को सलाम किया। फिर आपने उनसे पूछा, ऐ हजरत, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल सही है, बराह करम ये भी बता दीजिए कि मुझे इबादत में मजा क्यों नहीं मिल रहा। इस सवाल के जवाब में वो बुजुर्ग हजरत इब्राहिम बिन अदहम को रूहानी हकीकतें और दर्स देकर उनकी रहनुमाई करते हैं। ये वाकया हजरत की अल्लाह ताला के साथ बेइंतहा मोहब्बत और इबादत के लिए उनकी गैर मामूली लगन को जाहिर करता है। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये सच्चाई की तलाश और अल्लाह की इबादत में लज्जत की जुस्तजू उनकी रूहानियत की गहराई को जाहिर करती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा दुनियावी लज्जतों और राहतों से बेनियाज रहते हुए अपने रब की रजा की कोशिश करते थे। यह उनकी सादगी और कुर्बानी का एक और निशान था, जिसमें उन्होंने हर तरह की दुनियावी आसाइशों को रद्द करके सिर्फ अल्लाह की इबादत पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी।
حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ایک اور روحانی واقعہ ہے جس میں ان کی جستجو اور اللہ کے راستے میں قربانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک دن ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آیا اور نصیحت کی درخواست کی۔ حضرت نے اس سے فرمایا، جو بند ہے اسے کھولو اور جو کھلا ہے اسے بند کر دو۔ اس شخص نے سوال کیا، حضرت میں اس کا مفہوم نہیں سمجھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضاحت دی، روپے کی تھیلی جو بند ہے اسے کھولو اور جو زبان کھلی ہے اسے بند کر دو۔ آپ نے مزید فرمایا، جب تک تم اپنی بیوی کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم اور خود کو کٹے کے برابر نہیں سمجھو گے، تم اللہ والوں کی صف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ والوں کی صف میں بیٹھنا بہت محنت اور جافشانی کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں اعجاز اور انکساری کا رنگ غالب تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کی جستجو کی۔ آپ کے دو جید خلیفہ تھے، حضرت خواجہ حذیفہ مرشی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ دونوں حضرات نے آپ کی رہنمائی سے بہت کچھ سیکھا اور آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک حصہ ایسا تھا کہ آپ کو کہیں بھی قرار نہیں آتا تھا اور آپ لوگوں کی نظروں سے چھپے رہتے تھے، اس لیے کہ ان کی روحانیت اور عبادت کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی قربت حاصل کرنا تھا۔ آپ کی زندگی ایک مثال بنی کہ انسان جب اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو دنیاوی لذتوں اور فانی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی وفات کا وقت بڑا ہی روحانیت سے بھرا ہوا تھا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا مقبرہ بغداد میں ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی وفات شام میں ہوئی تھی۔ تاہم زیادہ مستند قول یہی ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت لوط علیہ السلام کے مقبرے کے قریب واقع ایک غار میں قیام پذیر تھے اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 26 جمادی الاول 280 ہجری میں ہوا۔ آپ کی وفات کے وقت ایک غیبی آواز آئی جس میں اعلان کیا گیا، یہ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا۔ یہ آواز سن کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اور بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کی زندگی اور وفات ایک درس ہے کہ انسان کو اپنی تمام دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی محبت اور رضا کی جستجو کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اصل کامیابی اور فلاح ہے۔ آپ کی زندگی کی داستان ایک زندہ مثال ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خود کو قربان کرنا